जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. I'm going to read Light of Divinity. God sitting amongst us. So सच में भगवान हमारे बीच में रहे और सच में मुझे भी पहचानने में बहुत टाइम लगा गुरु जी को. So now I'll just start the Light of Divinity. God sitting amongst us. There was a time when temples, places of pilgrimage, idol worship, rituals, and astrology, or belief in omens all had a meaning. They have come meaningless to me ever since I met Guruji. How blessed we were to be with our Guruji. Guruji is not a magician or a priest or a Swami. He is God, but sitting here amongst us, making our lives easier and happier by the day. My experiences prove my faith and extremely strong belief in him. As a devotee, I connected with Guruji the first day I met him. I got married with Guruji's blessings in November 2000. Soon after my wedding, Guruji started telling me that he would bless me with a son. My husband and I would never take too much interest in that repetitive line of Guruji, Ek Munda Lale, take one son. And he kept saying this from November 2000 to July 2003. On July 7, the very auspicious day of Guruji's birthday, there was a huge Sangat in the Bade Mandir, where we all sat and cherished his divine company till 3:30 a.m. That's when he called me and told me that he had blessed us with a son. We took leave and left the temple, again not paying attention to what Guruji had said. 1 week later, on 13 July 2003, it was Guru Purnima and I went to Guruji's with my mother-in-law. Guruji has no secrets with anyone. He talks aloud to each and everyone. But that day, just as I touched his feet to take leave, he beckoned me closer to him and whispered in my ear that I was pregnant and that I should not reveal it to anyone. Yet I did. I came back home and gave the news to my husband. He ignored it and said that I believed in Guruji too much. However, I waited till I could find out medically if I was pregnant or not. Sure enough, on August 1st, my pregnancy test was positive. Guruji's blessing had come true. Now here is where the catch is. As humans, we lose patience and fall in our own estimation because we want something from Guruji. It has to be now, but look at my case. Guruji had been telling me for 3 long years to get blessed with a child, but I had not even once questioned or let the thought cross my mind that if he has been saying it for so long, why doesn't it happen? We have the power to see till the wall, whereas Guruji has the power to see way beyond. He knows when the time is right for anything, and that is when he is going to make it happen. No priest or saint or magician has the power to create life, and that is exactly what Guruji did for me. And sure enough, I gave birth to a baby boy, no doubt about that. In fact, for my husband and I, it would one word or the line of a shower with 100% devotion for days, month, and maybe sometime year for a particular reason, to hammer on one spot again and again so that the door breaks open, and it does. So these are satsang by a devotee. The name is not given. So बहुत शुक्राना गुरुजी. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. सो देखिए, गुरुजी का वही है. गुरुजी जब कहते थे किसी को बेबी देने के लिए बोलते थे, उन्होंने 3 साल तक उन लोगों ने नहीं सुना. और फिर गुरुजी ने देखिए आंटी को वो बता दिया कि उनका बेबी होने वाला है. सो गुरुजी को संगत जी सब पता है, क्या नहीं पता.
और इससे ना मुझे ऐसा याद आया, हमारे घर में एक बार कुछ आई थिंक कुछ ओकेजन होगा, जब कुछ ओकेजन होता है तो डेफिनेटली यही होता है कि हम लोग गुरुजी का सत्संग करते हैं। सो गुरुजी का सत्संग हम लोगों ने रखा था, तो हम लोगों ने किसी को इनवाइट किया था। वो गुरुजी के संगत के नहीं है सॉरी। और उन्होंने यही सब सोचा कि नहीं, सर के घर में सत्संग है तो हमें जाना चाहिए। तो वो लोग आए, और वो सिर्फ इसलिए आए थे कि हम लोगों ने इनवाइट किया है। तो जब वो लोग आए और उन्होंने देखा था तो गुरुजी का सत्संग है, ठीक है, उन्होंने लंगर किया जैसे सब लोग कर रहे थे, उन्होंने लंगर किया। और ठीक है, अब उनका ये था कि उनको 13 साल से उनकी कोई भी बेबी नहीं था। सोचिए, वो 13 साल से ये चाह रहे थे कि कोई भी उनका बेटा या बेटी कुछ भी भगवान दे दे, बट उनको वो दे दे। सो देखिए, 13 साल काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और उन्होंने बिल्कुल उम्मीद भी छोड़ दी थी। सो जब जिस टाइम वो लंगर करने आए यहाँ पर और गुरुजी को उन्होंने माथा टेका, क्योंकि सब टेक रहे थे, उनको लगा ठीक है भाई, उनको लगा नहीं मतलब अपने हम सर के घर में आया, हमारे बड़े हैं, सो जैसा वो कह रहे हैं तो हम लोग क्यों ना इनका बात माने, क्योंकि ऑब्वियसली होता ही है कि अगर हमारे सीनियर हमसे कुछ कहते हैं तो हम लोग जाएंगे वहाँ पर। सो उन्होंने लंगर प्रसाद किया और चले गए, गुरुजी को माथा टेका। सो देखिए, उनकी वही अरदास थी, आई थिंक वो इतने सालों से माथा टेक रहे थे सब जगह हर जगह, और उनकी सिर्फ यही अरदास आई थिंक थी कि उनको कोई उनका बेबी हो जाए। और देखिए, कुछ टाइम के बाद वही हुआ, उनके बेटी हुई। सो दिस इज अमेजिंग, यू नो। और अभी देखिए, अब उनकी 2 बेटियां हैं, उसके फिर दूसरी बेटी भी हुई। तो देखिए, कहाँ 13 साल से उनको कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था, और जब उन्होंने गुरुजी से जुड़े, और वो देखिए, वो गुरुजी की संगत भी नहीं है, वो तो सिर्फ हमारे लिए, मतलब हमारी वजह से आए कि भाई चलो इनके घर में एक फंक्शन है, एक इनविटेशन है सत्संग का, तो हम लोग वो करें। सो वो इस पर्पज से आए थे। और देखिए, गुरुजी का लंगर प्रसाद करने के बाद 13 साल के बाद, यू नो, आई थिंक 2 साल के इंटरवल में, व्हाट आई रिमेंबर, उनको 2 बेटियां हुई। सो ये गुरुजी की देखिए कृपा है कि कैसे उन्होंने उनका विश्वास जोड़ा और वो गुरुजी का इतना विश्वास करने लगे। सो इट्स रियली अमेजिंग। सो वही मैं कोई पढ़ के आज जब आया कि गुरुजी ऐसे उस टाइम भी बोला करते थे, मुंडा ले ले, और बहुत ब्लेसिंग्स देते थे ऐसे करके। और ऐसे आई थिंक मैंने कितने ही ऐसे केसेस सुने। ऐसे ही एक और था जिनको भी 5 साल हो गए थे, उनकी कोई उनको बेबी नहीं हो रहा था, तो और जैसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली उन्होंने और गुरुजी से अरदास लगाई, तो देखिए कैसे उनकी एक प्यारी सी बेटी है। सो ये, और काफ़ी लोगों का मैंने देखा, काफ़ी लोगों का, कितने टाइम से वो लोग, यू नो, मतलब डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इनको बेबी नहीं हो सकता। लेकिन देखिए, गुरुजी ने, जैसे आज ही सत्संग पढ़ते पढ़ते मुझे उनका भी ख्याल आया कि कैसे गुरुजी, और आई थिंक कहते हैं कि गुरुजी वैसे तो हर किसी को ये बोल रहे थे कि चल तू मुंडा ले ले, मुंडा ले ले। और बट यू नो, जिनकी आई थिंक बेटियां शायद उनको दिया करते हैं, जैसे कहते हैं कि शायद वो जो बहुत किस्मत वाले होते हैं। सो आई थिंक हमें इसलिए कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए सब इंसान सब एक जैसे हैं। और आई थिंक शायद यही बताने के लिए, यू नो, शिव पुराण में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि जो अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया भगवान ने, वो यही इसका रीज़न है कि आप किसी को बेटा या बेटी को अलग मत समझिए। यू नो, दे बोथ आर इक्वल, दे बोथ आर सेम, कोई एक दूसरे से कम नहीं है। और देखिए कि जो एक फीमेल है वो प्रकृति है, यू नो, शी इज़ अ क्रिएटर, शी इज़ अ लाइफ गिवर। सो वही चीज़ हो जाती है कि वो हम उस चीज़ को हम कैसे लेते हैं। सो क्यों हम वो ये चीज़ करते हैं कि आज लड़कियों को उस तरह से यू नो मार दिया जाता है पैदा होने से पहले, या ऐसा कुछ है। बट यू नो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखो, बेटियां बहुत खुशियां लेकर आती हैं घर के अंदर, बहुत खुशियां लेकर आती हैं। सो कभी ये मत सोचिए। और आई थिंक अब जो गुरुजी ने ये बात बोली हमें कि शिव पुराण पढ़ना है, और उसमें अर्धनारीश्वर का जब ये आया, तो आई थिंक मेरे को यही मैसेज उस बात से लगा कि बहुत सारे इक्वल, क्यों लोग ऐसा करते हैं। और अपनी बेटी को बिल्कुल, यू नो, ऐसे करके चलिए कि हाँ, वो भी आपका, दोनों समान है, कोई इसमें अलग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और देखिए, जब हम गुरुजी को मानते हैं, सो हमें तो खैर ये डिस्क्रिमिनेशन करना भी नहीं चाहिए इस चीज़ के लिए कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, या इस तरह से क्यों हुआ, बेटियां क्यों हुई जा रही हैं, बेटा क्यों नहीं हुआ। नहीं, नथिंग।
जो आप भगवान आपको दे रहे हैं, जो दे रहे हैं वो सर माथे पर। आपको भी नहीं पता कब से कौन कहाँ से क्या चीज़ें कैसे कोई इंसान करता है, कौन अपनी किस्मत लेकर आ रहा है, वो अपनी किस्मत ला रहा है। वो हमारे किसी के हाथ में नहीं होता, वो आपके एक अपनी किस्मत के हिसाब से होता है, अपने कर्मों के हिसाब से हर चीज़ होती है। सो जो चीज़ आपको, और गुरु जी का भी यही है कि जो आपको दे रहे हैं अब जो भी संगत जो गुरु जी से जुड़ती जा रही है, तो आई थिंक उनके लिए ये चीज़ बहुत बहुत क्लियर हो जानी चाहिए, बहुत, कि जो गुरु जी आपको दे रहे हैं आप उसी पे विश्वास करिए, उसी का सोचिए कि जो गुरु जी दे रहे हैं आपको बेस्ट दे रहे हैं। हम लोग कोई बहुत परफेक्ट नहीं होते, हम कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, मेरे में भी गलतियां हैं, सब में गलतियां हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए परफेक्ट तो खाली भगवान ही है। और हम भगवान की अगर लीलाएं देखें तो भगवान ने भी वो लीला क्यों रची, वो लीलाएं सिर्फ इसलिए रची गई कि उनको भी पता था कि इंसान ऐसी गलती कर सकता है। तो उन्होंने भी उस लीलाओं के अंदर क्या किया, वो कहीं ना कहीं कुछ उनसे वो गलतियां हुई, जो मनुष्य रूप में जब आए और वो लीला उन्होंने की, सिर्फ आई थिंक यही बताने के लिए कि वो चीज़ गलतियां होती है लेकिन उनको सुधार कैसे सकते हैं। तो उसको हमें सुधारना बहुत ज़रूरी है, उसको हमें अपने आप को सही करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वो चीज़ सोच लें और ये मैसेज लें जो हमें शिव पुराण से बार बार मिल रहा है और जो हमें गुरु जी बोल के गए, आई थिंक सबका भला सोचो, सबका अच्छा सोचो। गुरु जी की जो ABC है कि डोंट अब्यूज, डोंट ब्लेम एंड डोंट कर्स, तो ये चीज़ हमें करनी ही नहीं है। किसी को हमें कुछ नहीं कहना, किसी को कर्स नहीं करना, किसी को ब्लेम नहीं करना, और कर्स तो संगत जी बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप कर्ज करते हुए किसी को, देखिए उसका भी इफेक्ट आपके ऊपर भी आता है। ये आप ज़रूर इस चीज़ को सोच के चलिएगा कि अगर आप भी किसी को कर्ज करते हो, कोई भी कर्ज करता है, देखिए जैसे अब आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे नारद मुनि ने जब भगवान विष्णु को कर्ज किया कि तुमने मुझे एक बंदर जैसा मुंह दे दिया है और तुम्हारे बंदर ही हेल्प करेंगे और तुम जो हो अपने ऐसे ही एक स्त्री वियोग के अंदर तुम तड़पोगे, है ना। जब वो शादी करना चाहते थे और उनको लगा कि विष्णु जी से उन्होंने रूप मांगा था और भगवान ने जो है उनका अहंकार तोड़ने के लिए उनको नीचे से धड़ से जो सिर से नीचे का सारा तो विष्णु जैसा दे दिया, क्योंकि वो अपने आप को ऐसे देख पा रहे थे, पर सिर जो था उन्होंने बंदर जैसा बना दिया। तो जब उनको वो जो दो राक्षस, जो दो गण होते हैं भगवान शिव के, और जब उनको बताते हैं कि भाई आपका जो फेस है वो तो मंकी जैसा है, बंदर जैसा है, और जब वो पानी में देखते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है और वो जो है भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सो भगवान विष्णु मतलब वो चुपचाप सुनते रहते जो नारद जी बोल रहे होते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि आप स्त्री वियोग में तड़पोगे, तो भगवान विष्णु जो है वो चुपचाप उस जो भी श्राप था वो चुपचाप उसको सहन ले लेते हैं और उनको यही कहते हैं कि ठीक है जो आप कह रहे हो, आपकी बात मानी मैंने। पर देखिए उस कर से क्या हुआ, उनको श्री राम का जन्म लेना पड़ा। श्री राम का जन्म लेने से माँ सीता को, और जो भी कुछ आपको पता है पूरा जो राम की जो लीला हुई वो सब जानते हैं रामलीला को। सो वो सब जानते हैं। तो देखिए वो कर्ज का ही नतीजा था कि उसने उसको कर्ज किया, उसने उसको श्राप दिया, उसने उसको दिया। तो वो सब, और उसके बाद जब नारद जी को श्राप मिलता है इस बात के लिए कि तुम जो है विचरण करते रहोगे, तुम एक जगह नहीं टिकोगे। सो देखिए वही होता है कि कहीं ना कहीं हम जब किसी को गलत बोलते हैं, कुछ करते हैं, अपना नुकसान भी हम कर रहे होते हैं और सामने वाले का भी कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हमें कभी किसी को कर्ज नहीं करना चाहिए। दुख होता है, ठीक, तकलीफ होती है, मैं मानती हूँ बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है कि क्यों, मतलब हम ऐसा सामने वाले ने हमसे ऐसा बोले तो हम ऐसे करें, वो रिवेंज की फीलिंग आती है। पर हमें संगत जी रिवेंज नहीं करना किसी से। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, जब गुरु जी उस वक्त भी जब बहुत और उस टाइम भी बस हम उनको देखते रहते थे, कोई मन में दूसरा ख्याल नहीं आया करता था हमें कि हम गुरु जी के पास मतलब कुछ सोचें या कुछ करें। तो अभी भी वही सब सोचिए आप, बिलीव मी, जब मैं एम्पायर से जाती थी और जब हम लोग वहाँ बैठे होते थे सिर्फ गुरु जी को देखती थी मैं, और अब सच में कोई मन में क्या हाल नहीं आ रहा था। अगर कुछ बात पूछनी है गुरु जी से या कुछ है तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट जब तक हम लोग वहाँ बैठे होते थे गुरु जी के सामने, सिर्फ मैं उनको ही निहारती रहती थी, कुछ मन में कोई विचार नहीं आता था। तो आप सोचिए अगर किसी के मन में भी ऐसी कोई चीज़ आ रही है, ऐसा कुछ ख्याल आता है कि हमें कुछ है, तो आप खाली गुरु जी के स्वरूप को देखिए, फिर देखिए कि आपको कितना अंदर से कितना खुद को, और इसमें कहते हैं ना, एक
शिव पुराण में बार बार एक चीज़ आती है कि इसमें संशय नहीं है। तो संगत जी बिलीव में, सच में आप जब खाली अपनी सारी बातें उनको बताते हो तो आप देखना सारी परेशानियों से निकलना शुरू हो जाते हो। सो इसी के साथ ही सबको बहुत बहुत शुक्राना, और सब ठीक रहें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर। जय गुरु जी।